Hello, connections. I hope you are doing good. In this lab, we will learn how to reload old version which is already created in Palo Alto. Palo Alto has created multiple versions. Whenever we make any changes, any policy, any object, then firewall creates some like old versions and with the timestamp. So if we facing some issue right away, we can reload our working old working version so that we just for this is for the asset actually. And now here we check the one live issue. Let's suppose I'm creating this firewall is accessing through this IP, right? Now I'm creating one problem in this firewall. It will not accessing through this IP, and I'm implementing the SSL certificate so that it will not accessing through certificate TSL actually, and how we roll back the changes. So this is very interesting video, and it will be help in the live scenarios, live in the live in real time actually. Okay, so we moving to the our practical. So here we can I'm creating the new certificate for the, let's suppose, web GUI, correct? I put the same name here, certificate authority, putting the IP and putting the host name. Let's suppose putting IP, I'm putting the same IP, which is the management IP. Okay, so 192.168.29.129. Correct. This is our DNS. Let's suppose www.rdlab.com. Correct. rdlab.com. Okay. Now we are going to the create one T SSL profile here. We actually I'm adding this profile with the like 1 second management interface. Okay, so I'm creating one the SSL profile, web GUI profile, correct? Here I select the new certificate which is created, and this is the okay, this is the good. Now we moving to the next part, setup. In setup, this is the management. We can change the settings, our management regarding access. This is the whole setting about the management actually. So here I just putting the like attach the our certificate here. 1 second. This is our certificate SSL TSL service profile. I'm attaching the same which is created in previous web GUI profile. And okay, correct. Now I am firstly I just download the certificate because of if certificate and download. इस वीडियो से हम ये अप्रोच ही होगी हमारी इस वीडियो से, अगर हमारा GUI एक्सेस नहीं होता है इन केस, तो हम कैसे प्रीवियस जो ओल्ड ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कैसे जंप कर सकते हैं, कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये मेन गोल है। तो सर्टिफिकेट को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हमें यूज़ में आएगा। मैंने GUI का सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट कर लिया। नाउ अब मैं कमिट करता हूँ। एवरीथिंग इज़ ओके हियर, हमने यहाँ पुट कर दिया है, गुड। अब नाउ मैं कमिट कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे SSL और TSL के लिए ऑलरेडी हमने ओके कमिट कर देता हूँ पहले मैं। ये आ गया ना वेब GUI प्रोफाइल। ओके, नाउ आई एम कमिटिंग द चेंज। मैं पोज नहीं कर सकता करंटली बिकॉज ये लाइव चल रहा रिकॉर्डिंग। सो वी जस्ट वेट एंड वॉच। बड़ा यूजफुल वीडियो है ये। अगर हम लैब के दौरान या फिर किसी कॉन्फ़िगरेशन के दौरान अगर हम हमारा जो GUI एक्सेस तो अच्छा है मेरा ये तो। अब चल रहा है, होगा कमिट होगा। मैं जो ऐसे सर्टिफिकेट लगा रहा हूँ इससे लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो नोट सिक्योर दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नोट सिक्योर दिखा रहा है, ये जो नोट सिक्योर है, इसको मैं सिक्योर करने के लिए मैंने ये चेंजेस किए हैं। बट लेट्स सी कि हम किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, और अगर अचीव नहीं होता है तो हम कैसे कनेक्शन लॉस्ट करते हैं और हम कैसे वापस रोल बैक करते हैं। तो कमिट ऑन गोइंग।
एक्चुअली ट्रिक है, ओनली ट्रिक है ये, कैसे हम रोल पे कर सकते हैं। Okay, so now my firewall goes log out. I am refresh here and see, actually मैं इसको बंद कर देता हूँ और क्लोज कर इसको ओपन कर देता हूँ वापस से, री एक्सेस करता हूँ इसको, करेक्ट। Okay, here I am putting the my firewall IP, management IP, कैसा दिख रहा है, एंड सी हेयर, अगर मेरा सर्टिफिकेट नेम नहीं आता है, अभी भी नहीं आया ना, तो इट्स मीन कि हमारी जो प्रोग्रेस है, मीन्स दैट मीन जो जॉब जॉब इन प्रोग्रेस है, बताता हूँ। वी कैन चेक थ्रू दिस कमांड। देखा, एक्सेस गया हमारा, यही हमें अचीव करना था एक्चुअली। बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर एक्सेस चला जाता है हमारा, तो हम उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, इस वीडियो का यही पर्पज था। अब हम जल्दी से देख लेते हैं। आईपी से हमें मिल नहीं रहा, मैंने rdlab.com किया था, हम ट्राई कर लेते हैं RD, क्योंकि मैंने उसमें DNS में नाम दिया था rdlab.com, ठीक है। नहीं हो रहा एक्सेस, कुछ और ही ओपन हो रहा है, ये अपने लिए नहीं है ये rdlab.com, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम, अब जो मेन जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले हम फायरवॉल एज CLI एक्सेस लेंगे थ्रू कंसोल। कॉन्फ़िग में जाएंगे, सॉरी कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िगर, यहाँ पे लोड करेंगे, लोड कॉन्फ़िग वर्जन, ठीक है। वर्जन करके यहाँ पे मल्टीपल वर्जन आ गए, जो हमने जो भी चेंजेस हुए उसके मल्टीपल वर्जन क्रिएट होते हैं। ये वर्जन आईडीज है और ये डेट और टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है, ये डेट और ये वर्जन आईडीज है, जो नंबर से न्यूमेरिक 121, 122, 123, 124, राइट। अब यहाँ पे जो वर्किंग लास्ट हम देखते हैं कि लास्ट वर्किंग में क्या था, तो मैं इस पर जाता हूँ। आज 28 तारीख है, 28 है, तो 28 में मेरा 5 बजे तक, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5:40 तक मेरा ओके चल रहा था, मीन्स 117 वाला वर्जन मेरा लिए ओके था, करेक्ट। मूव करते हैं 117 पे, फाइनल एंटर किया, ये लोड हो रहा है, लोड हो गया, लोडेड हो गया, कमिट करते हैं, क्योंकि कन्फिग्रेशन लोड हो गई, लेकिन उस जो लोड हुई कमिट को, जो चेंजेस है उसको हमें कमिट करना होगा ताकि वो रनिंग बन जाए, रनिंग में आ जाए, क्योंकि रनिंग अभी लेटेस्ट थी, हम प्रीवियस में जा रहे हैं, तो प्रीवियस को लोड करके हम उसको रनिंग में आना चाहते हैं, तो ये कमिट चलाना पड़ेगा। अब देखते हैं मेडिकल। अब इसमें ये जो कमांड है वो ले पर्पज़ में या फिर टेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जब तक कि नीड ना हो आप उसको यूज़ ना करें। आप टेस्टिंग पर्पज़ में आप मल्टी टाइम यूज़ करो इन लैब, नो वरीज। Our commit nearest to done, 98 going on. Okay, good. Here you can see web browser will be restarted once upon successful commit of this configuration. Now मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप रिलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा आईपी के थ्रू अभी एरर आ रहा है, अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेस होता है। नहीं तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्लोज, रीओपन ब्राउजर, now try to access our firewall through the IP,
Hey, got it. We are able to access our Palo Alto firewall in running configuration. Let me net 123. Here you can see the our one second. My password wrong. If you now we if we check the like the certificate part, because we created the certificate for the our GUI secure secure access. Here you can see the our certificate is removed because we uh, loaded the last non configuration. So this is the video about the last well known configuration, working configuration. Okay, so this is device certificate, and the certificate is not available, which is created for the GUI. Okay, now coming devices. In devices, you can see only one certificate is available. अरे क्या हो रहा है? Loading, loading, still loading. Okay guys, so you can see only one certificate available, which is ऑलरेडी जो हमारे पास में था वही है. नया सर्टिफिकेट को हमने रोल बैक कर लिया है, तो हमारे प्रीवियस नोटिफिकेशन आ गया. तो यही इसका मोटिव था इस वीडियो का. थैंक यू सो मच. आप रियल एनवायरमेंट में इसको यूज ना करें, टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करें. ये जस्ट छोटी सी ट्रिक थी. थैंक यू सो मच. हैव नाइस डे. बाय बाय.